Good morning, ladies and gentlemen. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Welcome to this special felicitation ceremony, an interactive session at Ramanujan College, where dreams are nurtured and aspirations are turned into reality. Today, we gather here to honor and celebrate the accomplishment of our esteemed alumna, Ms. Aprajita Agnihotri ma'am. To kick-start this dynamic event, let us begin by warmly welcome our respected Principal Sir, Professor S.P. Agrawal, whose guidance and vision have led Ramanujan College to new heights. Joining him is the Director of IQAC, Professor K. Lata Ma'am, and the spirited faculty member of Department of Statistics, Dr. Ashish Shukla Sir, Dr. Sachin Tomar Sir, and Dr. Bijesh Sir, and faculty member of NEEF, the Ramanujan Society, Mr. Jagannath Chaudhary Sir, and Principal Sir, Dr. Shailendra Pathak Sir, Dr. Umesh Jha Sir, Dr. Madhu Bhatt Ma'am, Dr. Hemlata Ma'am, Dr. Rajshri Ma'am, and Dr. Suman Jaiswal Ma'am, Mr. Vikas Sir, Ms. Ruchika Bal Ma'am, and Dr. Aprajita Ma'am, whose relentless effort have empowered and guided our aspiring civil servant. Also, between us, we have Dr. Alok Ranjan Pandey Sir from NSS, and our esteemed guest, Ms. Aprajita Agnihotri Ma'am. Today, we stand here in the presence of esteemed personalities, united by common goal of fostering excellence and igniting the spark of success in our student. But before we proceed, let us invoke the blessing of knowledge and wisdom by lighting the lamp of enlightenment. We request Principal Sir, Jagannath Sir, Professor K. Lata Ma'am, Alok Sir, Aprajita Ma'am, Dr. Ashish Shukla Sir, Dr. Sachin Tomar Sir, and Dr. Bijesh Sir to kindly join us for the lamp lighting ceremony. Thank you, esteemed guests and all the faculty members, for illuminating this occasion with your presence and symbolic lighting the lamp. We are truly honored to have you all here. Now, let us take a moment to introduce you to the remarkable institution we proudly call our own Ramanujan College. Accredited with NAC grade A++, Ramanujan College stands tall as a constituent college of the prestigious University of Delhi, inspired by life of work of Srinivasan Iyengar Ramanujan, one of the world's greatest mathematicians. Our college upholds the core value of dedication, hard work, and commitment, inculcated in the motto of University of Delhi, Nishtha, Drishti, and Satyam. Located in Kalkaji, South Delhi, Ramanujan College envisions transforming society for betterment of humankind. We strive to create an inclusive and collaborative environment where research and learning constantly benefit our local community, the nation, and the world. Alongside our commitment
to academic excellence. Ramanujan College fosters the growth of aspiring civil servant through NEEV, the Civil Service Society of Ramanujan College. NEEV aims to provide comprehensive assistance to civil service examination aspirant, offering guidance, study material, workshop, lecture, seminar, webinar, interactive session, and everything else necessary to support their preparation and fulfill their dream of serving the nation. Also, Ramanujan College provide a platform for students for community work through the unit of NSS, the National Service Scheme. NSS work for the betterment of society. It raises public awareness through its many projects and programs on various social issues such as health, hygiene, education, gender, and etc. With all of its dedicated volunteers, NSS of Ramanujan has worked extremely hard to prove its motto of Before we continue, let us welcome Aprajita Ma'am's Nana ji, Mr. Ramesh Talwani, who take his time to join us. National Service Scheme, NSS. NSS work for the betterment of society. It raises public awareness through its many projects and programs on various social issues such as health, hygiene, education, gender equality, etc. With all of its dedicated volunteers, NSS of Ramanujan has worked extremely hard to prove its motto of not me, but you. The volunteers of NSS unit have shown exceptional dedication and commitment toward their service activities, positively impacting the life of people in our community. It has worked in every sector, whether education, health, or empowerment. Projects Prakriti, Project Paryavaran are the initiative by NSS to build a sustainable environment where everyone can live in harmony with nature. The NSS has always been and will be an integral part of our college extracurricular activities, providing opportunity for our students to engage in various social welfare programs and community service initiatives. The Statistics Department of Ramanujan College, established in July 2013, has achieved remarkable milestones thanks to the relentless efforts of our dedicated faculty members and talented students. Our alums have secured prestigious position in big corporations, reflecting the practical skills and industry-relevant knowledge instilled with them. Additionally, we have consistently track record of producing at least one successful candidate in highly competitive IIT JAM examination each year, exemplifies our department's academic rigor and comprehensive preparation. In DU MSc Circle, the students of Department of Statistics at Ramanujan College holds a prominent position, occupying at least 30% of the batch. Moreover, the department takes the immense pride in accepting numerous students into renowned foreign universities. This global recognition highlights the excellence of our program and comprehensive education provided. Expanding our horizon beyond statistics, we have embarked on a new journey towards civil services examination. With the invaluable guidance and expertise of our esteemed faculty members, Dr. Sachin Tomar sir, Dr. Ashish Kumar sir, Dr. Vijay sir, Dr. Abhishek sir, Dr. Suman Jaiswal, we are equipping our students with necessary skills, knowledge, and ethics to excel in this challenging domain. This expansion reflects our commitment to nurturing well-rounded individuals capable of making meaningful impacts in diverse fields. So ladies and gentlemen, let us embrace the spirit of Ramanujan College as we embark on this felicitation ceremony and interactive session today. Together, we can inspire and empower our students to reach new heights and positively impact society. We are honored to invite the respected Principal Sir of Ramanujan College, Professor S.P. Agarwal, to felicitate Ms. Aprajita Agnihotri Ma'am on her remarkable accomplishments.
Moving on, we would like to invite the Director of IQAC, Professor K. Lata ma'am, to felicitate our guest. Next, we would like to invite on stage the faculty member of NEEV, the Civil Service Society of Ramanujan College, Mr. Jagannath Chaudhary sir, to acknowledge the outstanding achievement of Ms. Aparajita Agnihotri ma'am. Also, the faculty member of Department of Statistics, Dr. Ashish Shukla sir and Dr. Sachin Tomar sir, are requested to grace us with their esteemed presence on stage. And we also would like invite Dr. Suman Josbal ma'am to felicitate our guest, Ms. Aparajita Agnihotri ma'am. Finally, we would like to invite Dr. Alok Ranjan Pandey sir from NSS to felicitate our guest. Now, we would like to request Principal Sir to come on stage and grace us with his words. नमस्कार सभी का एक बार जोरदार स्वागत। देखिए, दिस इज ए डिफरेंट मूवमेंट। एक्चुअली वी हैव बीन वर्किंग फॉर दिस मूवमेंट फॉर लास्ट सेवरल ईयर। एज ए देशबंधु इवनिंग कॉलेज and then its journey to Ramanujan College, we had very few people going into services. But we knew that if we will work systematically and the quality of students which are coming, definitely we will achieve one day. And our achievement will be, today she is one, next year another one, next year two, another next year five. So that will be the achievement. Actually, this is a lot of motivation, not only for her parents, for her grandparents, but for each one of us. That is the key.
देखिए कितने प्राउड हैं उनके नाना जी यहाँ पर हमारे साथ हैं. He is feeling above the ground because the children has done wonders for the family. It is not that, this is for the first time, but when a family aspires something and children does that, they always feel lot of proud in it. So we are also proud of our diamond Aparajita, its family, and we have another diamond because she was already there. She is a new diamond. Aparajita is always diamond. Aparajita in political science, Aparajita in civil services. It's a great honor. All my colleagues who are, part of this journey, all young minds, see our ambition of this institution is to take it to the greater heights. And always we aspire for that. You will be glad to know that we are consistently working in appointing lot of faculty members in this institution. You will have more and more people and interaction with them, and they will definitely guide you in the right direction. Several people, they will come as permanent faculty members, and some more will come. Now, another important aspect is that each one of you should make a commitment that whatever you are, whether you are a civil servant or you are a foreign educated or you are a banker or anything else, always remember your alma mater, that is your institution. See, I went to United States in 2012 to see my alma mater after 30 years, and I was so proud of it. It was different feeling. यहाँ पर different feeling इसलिए नहीं होता, यहाँ रोज ही रहते हैं. Whether Delhi University or the college in which we studied. So, when you go away and you achieve something, everyone feels different. So, any way you can contribute in the development, you can motivate the young minds, probably you are the best person, and I am sure I congratulate once again Aparajita Agnihotri for her wonderful achievement, her parents who are constantly working with her, her grandparents who are always thinking and motivating her to achieve these heights. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your words. Success is not key to happiness. Happiness is key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Let this quote motivate us as we gather here today. It is an honor for us today that we have Ms. Aparajita Agnihotri as an accomplished individual who has exemplified the core values of Ramanujan College. Ms. Agnihotri completed her BSc Honours in Statistics and pursued her MA in Environmental Studies from Department of Environmental Studies, North Campus. She is currently pursuing her PhD in Environmental Studies from the same department. Her outstanding achievement includes the UPSC CSE All India Rank 124 in 2022. Let her give her a big round of applause. And now, with great pleasure, let us welcome our alumna, Ms. Aparajita Agnihotri, on the stage to share her experience and insights with us. Good afternoon, everyone. Am I audible? First of all, I want to thank Principal Sir, Lata Ma'am, Ashish Sir, Sachin Sir, so many other teachers I can spot. I want to thank each and every one of you for remembering me, and it really feels different to be. I've been on this side of the stage, anchored a lot of time in college, but this is a different feeling altogether. I am here for a felicitation, not to anchor any program.
Thank you. Um, so, uh, I have been given a small list of questions and what all you expect me to answer. So first of all, I'll start with how I entered in this journey and what exactly was my journey. So first thing first, my motivation for this exam is of course my father, who is in the Indian Forest Service. So since about time I got a little conscious about what I want to do in career, I had this exam in my mind. Otherwise, a few days ago, somebody was asking me, what do you want to be? Did you always think that you wanted to be a civil servant when I grow up? So I recalled my school memories and I realized when I was in class second, language is okay, English, मतलब हिंदी English करूँ या सिर्फ English? Both, okay. When I was in I recalled a memory that when I was in second standard. Somebody asked me, what do you want to be when you grow up? I told them that I want to open a kirana ki dukaan. That's because right outside my school there was a kirana ki dukaan and he used to sell chips and everything. And I was so amazed by it that wow, you can have this job, eat as much as you want, sell and have money as well. So, but anyway, that's when I was very young. But later on when I realized, I was quite focused on this career. So, I joined this college in 2013. I was fortunate enough to be the first batch of statistics which got enrolled here. And for the first 3 years that I have, the first batch that we were here, we did a lot of activities. I remember participating in Antardhwani, and I remember opening a statistical society just as an experiment so that we can implement a little bit of statistics that we were learning. And all this while, all these 3 years, back then Ashish sir and Sachin sir were the only two teachers when we joined in, and they were extremely motivating. I do not recall any instance when I have had an idea and they have said no. Whenever I used to have some idea, they always used to encourage me, yeah, this is a good idea, we should do it, we should pursue it. So my 3 years, I cannot compile it, say it to you concisely how my 3 years were, but they were wonderful, they were bright, they were experimental, they were colorful to say the least. So I genuinely want to thank Ramanujan College for helping me build what I am today. A large part of my personality is because of the college and the teachers. Now for this exam, apart from the motivation, I want to make something clear. This was my 6th attempt. 6th attempt, last attempt. For the last 5 attempts, I was not able to clear prelims. With a very minuscule margin, I was not getting through. So 2 attempts, right after my bachelor's, I decided I'll take a break and sit for the exam. 2 years I sat down, took a break, and realized that, okay, I am missing the mark with 1 mark, 2 mark, something like that. So what should I do? I was very troubled. So my father, because he knew how this exam was and how unpredictable this whole process turns out to be, he had filled DU's master's examination forms without asking me for me. So he knew that I was interested in, my optional was political science, so he knew that I was interested in political science. And he knew I was interested in environmental studies and also social work. So these were the three programs that that he had filled the form for. And I sat for all the 3 exams and I cleared all. So my reason for telling you this is that for the last 2 years, I had not been able to crack this exam. And suddenly I wrote 3 exams and I cracked all. So that was a confidence booster for me. I realized that, okay, I am not that dumb probably to not clear this exam. Maybe it's just not working right now. So out of these 3, I decided to pursue environmental studies because I have had an inclination, and of course my father was in the forest service, so obviously that inclination came from him. So I joined MA Environmental Studies from Department of Environmental Studies, and I had not stopped giving the exam. Parallelly, I was continuously, every year I was giving the exam.
Again, with a minuscule margin, I was not able to make it. Then after my master's, COVID happened. Then I realized that, all right, this is again not happening, and I was all in doubts that maybe this exam is not for me or I don't deserve it. All such sort of doubts. So I enrolled in PhD. Luckily, again, I gave an exam, I cleared it. So again, it was a confidence booster for me that okay, ये एग्ज़ाम हो सकता है नहीं निकल रहा है, बट बाकी निकल रहा है तो मतलब ठीक है, इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, वो फील नहीं आई मेरे को. सो आई जॉइन PhD एंड फॉर इट हैज़ बीन, आई जॉइन लास्ट मार्च एंड नाउ दिस मार्च आई completed 1 year of my PhD. So that was my whole journey. Now a few takeaways from, see, everybody who gets successful in this exam, you see the bright side of it, that okay, this person has given this much amount of time and they have cleared it. So a few takeaways that you can take from my journey specifically would be, learn from my failures. I have made enough number of mistakes that I can tell you not to make. So no topper, no, even I don't think any time, even in the past years, can tell you, okay, do this, you will clear this exam. No one can say this with guarantee. But I can tell you this with guarantee, don't do this. It will not aid you. So you can take these things from me of what you should definitely not do in this exam. Rest, the process remains the same for everybody. Now I would like to have an interactive session with each and every one of you. I'm sure you all have various doubts. So I'll take the questions and... Okay. Anybody, just raise your hand. Hindi, English, sab chalega. I'll answer. Yeah. Okay. So social media, I realized, works for a few people and works for some, and don't work for some. It didn't work for me. So I have been a very extrovert kid all my life. Very socialized. I socialize a lot. Sir हंस रहे मेरे को देखे because he knows कि ये घूमती रहती थी, पढ़ती नहीं थी. तो इसीलिए for me it was imperative that I took a break from social media. I was not anywhere for the last 6 attempts. 6 years I was not to be found anywhere. I did have a group of friends, very close group of friends, who were there to constantly motivate me, and whenever I felt that I was lagging a little, they were there to tell me that no, everything is fine, you'll get there, be patient. So for me, social media did not work. Newspapers, what happens with newspaper, especially what happened with me was, every time I used to fail prelims, I used to think, okay, now I'll be very regular with newspapers. But that would continue for a few months, and then something or other used to happen, some semester exams or something, and I used to lose a track of newspapers. And I was not that kind that I would keep a tab on the previous papers and read them. So one thing that I ensured, not reading the newspaper end to end, but one thing that I ensured was to just glance through the paper once. Not read it thoroughly if you can't, but glance through the paper once so that you are aware, okay, these things are happening in the nation, you should, or in the world, that you should be aware of. So that's one thing. For current affairs, because I was not very regular with newspapers, like I said, you can use any monthly magazine. I used to refer to Vision IS monthly magazines. And even in my last 3 attempts, I became very lazy. I did not even check the monthly magazines also. I used to go for the yearly magazines. But I did a lot of effort on the yearly magazines as well. I used to make notes of them because they are very bulky to revise. It's not easy for you to revise them regularly. So if you're that kind that you can highlight and revise, good for you. I was not that kind. So I made sure that मैंने थोड़ी मेहनत पहले कर ली है क्योंकि मुझे पता है मुझे बाद में आलस आएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी. तो मैं पहले कर लेती थी, and then I used to revise the notes. It used to become easy for me. वैसे any monthly coaching you can take, but my suggestion would be Vision IS. Vision IS monthlies are good. थोड़ी errors उसमें भी होती हैं, mistakes होती है, तो be careful of what you're reading. थोड़ा keep your eyes and ears open. Rest, I think that is enough. Anybody else? Yes. I have a question that हम लोग अभी जिस स्टेज में मीन्स कॉलेज के फेज में है, तो इस फेज में डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि करना क्या है.
और अगर आप 2-3 चीज़ों में अच्छे हो तो फिर तो और भी डिसाइड करवाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, म्यूजिक में भी अच्छे हो, एंड आपका एक ड्रीम है पहले से बचपन से कि जैसे आप 5th में हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, तो उस समय आपने मन बना लिया हो कि मुझे सिविल सर्वेंट करना है, एंड फिर आप सोशल इश्यूज़ के बारे में समझते हो कि इतना आसान नहीं है सिविल सर्विसेज करना, इसमें बहुत ही रिस्क फैक्टर है, तो फिर आप किसी और कैरियर के तरफ स्विच करते हो। जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है उतना करने का। तो इस दुविधा को कैसे आप हैंडल करते हो? मीन्स आप कैसे डिसाइड कर पाते हो कि हाँ ये मेरा गोल है, मुझे इस पे फोकस करना है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक क्वेश्चन बहुत तंग करता है कि अगर इंटरव्यू पैनल पूछते हैं कि वाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? मतलब आपके मन के अंदर कुछ भी हो, लेकिन आप ऐसे आपको जवाब देना है कि वो इंटरव्यू आपको सेलेक्ट कर ले, इंटरव्यू पैनल वाले। तो ये 2 क्वेश्चन का मैं जवाब चाहूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन ब्रॉडली मैं समझी हूँ उसका जवाब देती हूँ। मेरा भी ना कॉलेज में थोड़ा ऐसा ही था, मैं हर चीज़ में थी, मतलब सारे टीचर्स वुड एग्री। मैं मतलब डिबेटिंग में भी थी, एनएसएस में भी थी, स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, एवरी सोसाइटी, एवरी इवेंट दैट यूज्ड टू हैपन आई वाज देयर। जोश में भी थी, हर जगह ही थी। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिकॉज यूजुअली कॉलेज में क्या होता है, बच्चे स्ट्रीम्स सोचने लग जाते हैं कि किसी को एमबीए करना है, किसी को यूपीएससी करना है, तो उसमें किसी को मास्टर्स और करनी होती है, किसी को बाहर जाना होता है, बाहर मास्टर्स करनी होती है। बहुत सारे लोगों के करियर पाथ्स डिसाइड हो जाते हैं मोर और लेस। मेरे को भी बीच में कन्फ्यूजन हुई थी। आई थॉट आई राइट एमबीए का एग्ज़ाम। मैंने एमबीए का एग्ज़ाम दिया भी था, मेरे को लास्ट ईयर में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मेरा कितना परसेंटाइल था। बट ऑल दिस प्रोसेस, मतलब ये 3 साल की प्रोसेस में मेरा जितना मैंने वेरीड एक्सपीरियंस लिया था, उसमें कहीं ना कहीं मेरे को मतलब समझ में आ रहा था कि नहीं, घूम फिर के ना इंक्लिनेशन यहीं पे है। मतलब मैं अगर एमबीए कर भी लूँ या मैं मास्टर्स कर भी लूँ, तो मुझे घूम फिर के ये एग्ज़ाम देना ही है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये ना एक थॉट, यू हैव टू सिट एंड थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड। तो दैट आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा जो आप बोल रहे हो ना, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट एवरीबडी हियर आफ्टर दिस ईयर्स प्रीलिम्स स्पेशली, प्लीज़ मतलब इफ़ यू, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो 1 साल का ब्रेक ले लो इस एग्ज़ाम के लिए। दिस एग्ज़ाम अब ये एग्ज़ाम ऐसा रहा नहीं है दैट यू कैन टेक, जैसे बच्चे 6 से 7 साल ब्रेक लगा देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि बहुत डाइसी हो गया है एग्ज़ाम, स्पेशली प्रीलिम्स। मेंस और इंटरव्यू यू कैन स्टिल टैकल, but this year's prelims specially is making me say this. तो have a parallel career. जैसे I joined MA and then I started pursuing PhD also. तो कहीं ना कहीं जो ये मोटिवेशन थी और जो स्ट्रेंथ था और जो पेशेंस भी था to continue up till the 6th attempt, that was there only because I knew, okay, if not this then this. तो मेरे पास इसका जवाब था कि ये नहीं होगा तो ये कर लूँगी। और मेरे को ये था कि पीएचडी करके बढ़िया डीयू की प्रोफेसर बनूंगी, मज़े की लाइफ होगी मेरी। तो इसीलिए आई वॉज नॉट वरिड कि चलो ठीक है कि कुछ ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं बिल्कुल खाली बैठी होंगी। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब दे आर टचिंग 30-32 बीटेक करने के बाद, बीएससी करने के बाद, दे हैव लॉस्ट द प्राइम ऑफ देयर लाइफ। दिस इज़ द प्राइम ऑफ योर लाइफ दैट द एग्ज़ाम जो आपका ये ले लेता है। डोंट वेस्ट इट। एक अटेम्प्ट अगर आपको ब्रेक लेके कोचिंग, वैसे मैं बहुत कोचिंग के लिए भी प्रो नहीं हूँ, बट अगर किसी को कोचिंग अगर लेनी है तो कोचिंग ले लो, और एक अटेम्प्ट से ज़्यादा ब्रेक मत लेना। प्री नहीं निकल रहा है तो आप प्लीज़ जॉइन समथिंग, वॉट एवर यू लाइक। यू कैन, 1 साल की अगर अच्छी मेहनत है तो यू कैन मैनेज दिस एग्ज़ाम, साइड में पढ़ते पढ़ाते हो जाता है। आई हैव सीन मैनी पीपल, आई नो मैनी पीपल जिन्होंने जॉब्स के साथ भी मैनेज किया हुआ है। तो एक बार की मेहनत है, एंड दिस एग्ज़ाम नीड्स जस्ट 1 गुड अटेम्प्ट। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट। लास्ट अटेम्प्ट था, 1 गुड अटेम्प्ट एंड यू आर थ्रू। तो दैट आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इंटरव्यू वाला जो था ना, सो आई हैड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अलॉट जब हमने इंटरव्यू के टाइम पे कि वाई डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। सो एक बेसिक टेम्पलेट है जो कोचिंग वाले बांटते हैं सबको कि हमें देश सेवा करनी है, विच इज़ ट्रू। मोटिवेशन आपकी करेक्ट होनी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मोटिवेशन ये है ना कि मैं आईएएस बन के मेरे को दहेज मिलेगा, प्लीज़ डोंट गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। यू हैव टू हैव करेक्ट मोटिवेशंस फॉर दिस एग्ज़ाम। यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड इनफ टू राइट दिस एग्ज़ाम फॉर 6 years 7 years। अदरवाइज वो दहेज का भी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा।
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगेगा शादी हो जाए बहुत है। तो इसीलिए मोटिवेशंस करेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। सो माई जेन्युइन आंसर वॉज दैट first of all, my motivation was my father, so that was one answer, that I have seen this service closely, so I want to be in the services. And दूसरा, of course, I wanted to work. और मेरे को जो काम करना था, I had a few things in my mind, like I want to work for women and environment. दो चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम क्लियर थी. You can have your own motivation and don't be afraid to say your real answers वहाँ पे. Until unless your answer is Dahej, don't say that. तो जो रियल आंसर है वो आप बोलो, बोर्ड अप्रिशिएट्स. और बोर्ड को ना, जितने भी इंटरव्यू बोर्ड्स हैं, दे नो दिस टेम्पलेट वेरी वेल कि बच्चे रट के आने वाले हैं और ये बोलने वाले हैं. तो अगर आप कुछ मतलब ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक फोकस उसके साथ जाके वॉट एवर योर ट्रू मोटिवेशन इज, जस्ट पुट इट नाइसली, दे विल अप्रिशिएट इट. दैट आंसर्स योर सेकेंड क्वेश्चन. एनीबडी एल्स? What was my? Okay, so I'll tell you. मैंने GS के लिए एक मुखर्जी नगर में कोचिंग थी. I had enrolled because मैं एकदम लास्ट में, मैंने 2016 में I think अगस्त या सितंबर में डिसाइड किया कि आई विल राइट दिस एग्जाम इन 2014. तब तक सारी कोचिंग बंद हो चुकी थी, सबने एडमिशन लेना बंद कर दिया था. तो एक कोई रैंडम कोचिंग आई फाउंड इन मुखर्जी नगर. आई हैड एनरोल्ड देयर. एक दो क्लासेस गई होंगी मैं, और मेरे को उसके बाद रियलाइज़ हो गया यहाँ से तो मेरा ना सिलेबस होने वाला और ना यहाँ पे मतलब मेरा कोई पीयर बनने वाला ग्रुप. सो बेटर आई स्टे एट होम एंड स्टडी. सो ऑल ऑफ माई GS प्रिपरेशन आई हैव डन ऑन माई ओन. ऑप्शनल के लिए, बिकॉज माई ऑप्शनल इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. अब राजिता मैम PSI है की है. आई हैड नो आइडिया अबाउट पॉलिटिकल साइंस. तो वहाँ मैंने, यू हैव टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट दिस एग्जाम. जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप ले सकते हो. ऑप्शनल की कोचिंग ले सकते हो. GS यू कैन डू ऑन योर ओन. ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका खुद का है, then I don't think you really need a coaching. Then you should probably, you can take test series, और मतलब इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हो टू एनालाइज हाउ गुड आर यू इन योर सब्जेक्ट. बट अगर आपका एकदम नया है, then you can think about it. So I joined Shubhra Ranjan IS for political science and international relation. Crash course था I think 2 या 3 महीने का. So I did that. For covering the syllabus, I'll tell you, this year every phase, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आई हैड वन फीलिंग कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में ना यू विल नेवर फील कि यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस. सब कुछ लगेगा यार ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले. कोई और बोल देगा यार ये किताब भी पढ़ ले, वो नई किताब आ गई. तो दिस विल कंटिन्यू. तो हैव अ बेसिक फंडामेंटल लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू नीड टू रेफर टू. अपने GS के सिलेबस को, प्री इज़ अ वेरी वेगली डिफाइंड सिलेबस. गो विद द मेंस का सिलेबस. मेंस के सिलेबस में गो विद पेपर वाइज, और उसमें देखो कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं. आई विल शेयर माई बुक लिस्ट विद ऑल ऑफ यू, जो मेरी बेसिक बुक लिस्ट थी. whoever is the president of the NEEV, I'll give it to them, वो शेयर कर देंगे. तो एक बेसिक बुक लिस्ट बना के रखो एंड रिवाइज इट. ठीक है, ये एग्ज़ाम स्मार्ट वर्क की तो बहुत ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट हार्ड वर्क किए बिना ये आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं. मतलब दिस इज़ नॉट टू बोस्ट यू, बट बल्कि बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, आप लोगों को पता होगा, आई हैड रिवाइज्ड इट सो मेनी टाइम्स कि मैं वो बुक 3 घंटे में रिवाइज कर सकती हूँ. अभी इस प्री से पहले मैंने ये वाला प्री, मेरा एक फॉरेस्ट सर्विस का अटेम्प्ट बचा हुआ था, तो उसके लिए मैं रिवाइज कर रही थी. तो आई हैड लिटरली गिवन 2 weeks टू रिवाइज ऑल ऑफ GS फॉर दिस प्रीलिम्स. तो थोड़ी मेहनत ना, मतलब जम के बैठना पड़ेगा. वन ऑफ माई फ्रेंड वंस टोल्ड मी कि लाइफ में ना कुछ बढ़िया करने के लिए एक एग्ज़ाम तो निकालना पड़ता है. अच्छा, तो वो एग्ज़ाम आप कोई भी निकाल सकते हो, पहले निकाल लो, बेटर है लाइफ में कोई. इट इज़ टोटली योर चॉइस, बट मेहनत उसमें पूरी करनी पड़ेगी. यू कांट शाई अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड. तो ये GS सिलेबस का ना यूजुअली टेक्स 8 months में कवर हो जाता है. देन यू हैव टू स्लॉग वेरी हार्ड टू रिवाइज इट. The more number of revisions that you will have, the better your foundation will be, the better every step of your exam will be. You will be more confident than rest of the people. So that answers your question. I'll share the book list just with the president. Anybody else? So it was a
proud moment, and not just that it was someone from Ramanujan College, but it was also someone from the Department of Statistics. And I'm saying this because I am also from Statistics Department. So this achievement felt a different level of, personal. So actually, before I move on with my doubt, I need to ask you about your optional. What was your optional? My optional was political science and international relations. All right. So, ma'am, actually, I'm in the same situation that I have graduated with statistics as my major, and I'm not pursuing it either for my master's or for my optional. So, I have this little fear that maybe after some years, if I'm not able to get along with the civil services examination, so I might have this feeling that the 3-year degree I did in statistics, that might go in vain. Maybe it will just remain a stamp that yes, I'm graduated. So, what do you think about this? I'll tell you something. Statistics, I think, is one of the unique subjects which has an extremely interdisciplinary approach. No subject in masters, whether even it is political science, art subject, science subjects, commerce subject, you cannot do without statistics. They will teach you statistics. So people either in private sector or even in the universities academics, they want people from statistics. I'll give you my example. So I am the only person in my batch, both in MA and PhD, who has a background in statistics. Everybody in the lab used to cry कि हमसे नहीं हो रहा stats, नहीं हो रहा stats, and they used to come to me. So you have that unique advantage कि बहुत इस subject की application ना is मतलब it's very wide. हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, हर मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हो, नॉट जस्ट लिमिटेड टू साइंस बट आर्ट्स ऑल्सो. सोशल स्टडीज़ के इतने सर्वेज और वो सब होता है, यू कैन नॉट डू विदाउट स्टैटिस्टिक्स. यू हैव टू एनालाइज देम यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. तो योर डिग्री विल not go in vain. I am telling you in advance. Even if you don't choose to go with MSc statistics, like I went for environmental studies, my degree did not go in vain. It was only in my advantage. So don't worry about that. Parallelly, I am suggesting everybody, if you are willing to take a break, one break, please don't take more than that. This exam does not need break more than 1 year. Please join something, do something. This is the prime of your life. You should enjoy it. The exam is just a part of it. You should not make your life just about exams. I had a blast in my last 6 years. मैं ऐसा नहीं था कि मैं एकदम ही पढ़ ही रही थी और कुछ नहीं. सर आशीष सर और सचिन सर, विजय सर बता देंगे, I am not that kind. I had a group of friends जिनसे मैं रेगुलरली टच में रहती थी, मैं घूमती भी थी, मैं बातें भी करती थी. तो यू हैव टू लिव योर लाइफ. 6 साल आप इसको दे दोगे, यू विल ऑलवेज, इफ़ यू नॉट हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग यू एंड टेलिंग यू पॉजिटिवली अबाउट यू, you will only start comparing with your counterparts कि यार ये तो बाहर चला गया पढ़ने, he is earning so well, she is earning so well, या इसकी तो PhD complete हो गई, हम तो अभी enter कर रहे हैं. तो these all comparisons to protect yourself from all the negativities. You need to have a group of people. Statistics degree doesn't go in vain ever. Don't worry about that. You are audible. Huh? So these are also in notes form. And again, for those we don't need to be which exactly which we need to make I'll tell you what I did. Okay, so to each or to its own, मतलब ऐसा रहता है सबके लिए. मेरे साथ ऐसा था फॉर एक्सेप्ट लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम के, हाँ, इन 2 बुक्स को छोड़ के आई हैड मेड नोट्स ऑफ एवरीथिंग बी इट इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक तो मैं करंट अफेयर से ही कर लेती थी. वॉट एवर बुक लिस्ट आई शेयर, सारे नोट्स बने हुए थे एक्सेप्ट लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम. ये तो 2 बाय हार्ट हो गए थे मेरे को. तो मतलब अगर कोई मेरे को नींद से ऐसे जगा के बोलता है कि इस पन्ने में क्या लिखा है, तो मैं उठ के बोल देती क्या ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये 2 किताबें तो बाय हार्ट होनी चाहिए, बट विद अ वेरी ओपन माइंड एंड आईज एंड ईयर्स, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी गलतियाँ हैं. मेरा एक एग्ज़ाम प्रीलिम्स का 2 क्वेश्चन इसलिए रुके थे क्योंकि मेरे को लक्ष्मीकांत ज़्यादा रटी हुई थी.
ठीक है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन थी और मैंने गलत मार्क किया, तो उसकी वजह से मेरा रुक गया था प्रीलिम्स। तो बी अ लिटिल ओपन, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर्स और सिलेबस को कीप इट इन योर माइंड एज अ गाइड, सो दैट यू आर रीडिंग व्हाट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट। बुक्स में बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे स्पेक्ट्रम में देयर इज़ अ वेरी बल्की चैप्टर ऑन एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो अलग अलग जितनी सारी वॉर्स हैं, उसका इनपुट आउटपुट इज़ वेरी पुअर। तो आप उस पर कितना ही पढ़ लो, उससे क्वेश्चन शायद एक भी नहीं आने वाला ना। प्री में हो सकता है फिर भी आ जाए, मेंस में तो नहीं आता। तो थोड़ा इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से यू नीड टू, उसके लिए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आर योर गाइड, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनीबडी एल्स? हाँ, माइक ले लो। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मैम, मुझे पूछना था कि हमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कॉलेज में ही शुरू कर देनी चाहिए या दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कॉलेज में? मैंने नहीं की थी शुरू, बट देयर इज वन हैबिट दैट यू कैन स्टार्ट विद, इट्स अ वंडरफुल हैबिट एंड इट विल नॉट गो इन वेन एवर। न्यूज़पेपर आप पढ़ने लग जाओ ना, हाफ ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन यू आर इन। तो अगर कुछ बेसिक से शुरू करना है, मतलब फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, इवन थर्ड ईयर से न्यूज़पेपर्स पढ़ने शुरू कर दो। यस। और अगर कुछ ऐड करना है इसमें ना, एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, बिकॉज वो एनसीईआरटीज़ में ना इट डज़ नॉट टेक योर एडिशनल एफर्ट कि यार आप कॉलेज की हफ्ता भर की छुट्टी लेके बैठे हो। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए यू नीड अ गुड टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ो, एनसीईआरटीज़ आर वेरी ईजी इन लैंग्वेज एंड ईजी टू कॉम्प्रिहेंड। तो स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़ एंड न्यूज़पेपर्स इफ़ यू वांट टू, बट माई ऑनेस्ट सजेशन वुड बी, कॉलेज है, बहुत इन्जॉय करो, 3 साल खूब मस्ती करो, इधर उधर सोसाइटीज़ में जाओ, दोस्त बनाओ, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विच यू हैव टू शो इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड, वो इसी टाइम बनती है। तो अगर इस टाइम अगर आपने अपनी जितना ओपन माइंडेड रख सकते हो अपने आप को, जितना अपने ओपिनियंस, अपने पर्सपेक्टिव्स क्वेश्चन कर सकते हो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज दिस टाइम विल नॉट कम बैक। ये जो कॉलेज का टाइम है, मास्टर्स का टाइम है, पीएचडी में तो ख़त्म हो जाता है ऐसा कॉलेज वाला माहौल, बट बैचलर्स एंड मास्टर्स आप जितना इन्जॉय कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। डोंट मिस आउट ऑन द फन ऑफ ऑल द गुड एक्टिविटीज़, खूब पार्टिसिपेट करो, बिल्ड योर सीवी। ये 3 साल आपके कॉलेज के, बैचलर्स के, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड अ सीवी। तो ये 3 साल खूब इस एरिया में आप मेहनत करो। कुछ अगर शुरू करना है तो स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़ एंड न्यूज़पेपर्स, not more than that. थैंक यू सो मच मैम। Anybody else? हाँ, यहाँ पे एक है। Congratulations on your well-deserved success, ma'am. Thank you. I just want to ask that in the interview, the board knows that अगर student ने अच्छे से पढ़ा है, clear किया है, so he has, sufficient knowledge about the topic. So, ma'am, interviews में basically वो क्या check करते हैं? वो student की personality या उसका behavior पे ज़्यादा focus करते हैं या उसके knowledge पे? I'll tell you my interview experience first. Then we'll jump to conclusions जो तुम चाह रहे हो. So my chairperson was Lieutenant General Raj Shukla sir. And this was the first time that he was, I think first or second time that he was taking UPSC interviews. एग्ज़ाम की प्रोसेस में आप घुसोगे ना तो हवा से पता चल जाता है कि यार ये बोर्ड अच्छा नंबर दे रहा है, ये बोर्ड अच्छा नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा। तो सर के बारे में से कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी नहीं हमारे पास। एनीवे, दैट्स बीइंग दैट, सर का बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। जो आप बोल रहे हो कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक नॉलेज तो होगी, दैट इज़ ट्रू, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो ट्रू दैट वी डोंट नो एवरीथिंग। हमने इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह पढ़ा है। वी हैव नॉट परस्यूड, जैसे आई हैव नॉट परस्यूड पॉलिटिकल साइंस एज अ डिग्री, सो आई हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ दिस एग्ज़ाम, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो वो एक थोड़ा सा ना, यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड दैट यू डोंट नो एवरीथिंग। तो जैसे मैंने 3-4 जगह जहाँ मॉक दिया था, जैसे बाय फर्स्ट मॉक में से प्रिपरेशन हो रही थी, तो मैंने ऐसे एक कोचिंग में चली गई थी मैं मॉक देने के लिए, हाईली अनप्रिपेयर्ड, ये सोच के कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा
क्वेश्चन ऐसा जो मुझे नहीं आता होगा, तो हाउ विल आई टैकल दैट, बिकॉज बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो मुझसे ऐसा कुछ पूछ ले मेरे को नहीं आता होगा. तो वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लीज़ मत देखना, बिकॉज उसको देख के लगेगा कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया. तो आई वेंट एक्सट्रीमली अनप्रिपेयर्ड जस्ट टू analyze and understand how my body works, how I react when I am under pressure, when I don't know something. तो आई रियलाइज़ कि आई गेट अ लिटिल नर्वस, फिजिटी हो जाती हूँ मैं, और वो पूछता है तो मैं मतलब मेरी वॉल्यूम लो हो जाती है. ऑल ऑफ दैट यूज टू हैपन. तो मेरे को लगा है दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू वर्क, बिकॉज नॉलेज तो अब इतना जितना पढ़ लिया उतना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम नहीं जानते. एनीवे, ऑन द इंटरव्यू डे आई वेंट एंड that moment I entered, मतलब my first topic of discussion was Russia-Ukraine war. उस time just चल ही रहा था, and my interview was, I don't know the longest, but one of the longest. It lasted for 40 minutes roughly. Usually it lasts for 20-25, average time ऐसा ही था. मेरा 40 minutes था. तो मैं तो जब इंटरव्यू से बाहर निकली, my parents were there. I was almost crying कि मेरे को 40 मिनट इन्होंने बैठा के रखा है, पक्का देख रहे इसको कुछ आता भी है कि नहीं, कि कुछ बोल भी पाएगी कि नहीं बोल पाएगी. आई हैड आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट ये ना मतलब हमेशा रहेगा कि आंसर कैसे करना है, नहीं करना, नॉलेज है नहीं है. तो माई टेक अवे फ्रॉम द इंटरव्यू वॉज कि दे आर टेस्टिंग नॉट जस्ट योर नॉलेज बट योर पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस. दीज टू गो हैंड इन हैंड. अगर आपके पास पर्सनैलिटी है और नॉलेज नहीं है तो उनको लगेगा कि ऐसा हवाबाज बच्चा ऐसे ही निकल गया इसका फ्लूक से पेपर, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव ओनली नॉलेज and not confident about yourself and not able to not saying that you are communicating in a very fluent language, और ऐसा कुछ नहीं कह रही, but if you are not able to communicate your point clearly पहुंचना चाहिए. आप कैसे भी पहुंचाओ. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंटरव्यू का हिंदी इंग्लिश दोनों है, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ करके जा सकते हो, बट वॉट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे दैट शुड बी कन्वेड. इतनी सी बात है. तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. अभी पहले देर आर अदर थिंग्स टू वरी अबाउट टिल द इंटरव्यू, बट दैट्स माई आंसर टू यू. Thank you so much, ma'am. No problem. Somebody from behind was also. I'll just come to you. Many congratulations to ma'am. Thank you. We all wish you for a better future. Thank you. Ma'am, now we are talking about books, revision number of times and sticky notes. So in this examination, notes play a vital role in it. So how will you make notes and when we have to start making notes? तो बेसिक मेरा वही है कि मैं थोड़ा कामचोर हूँ, है ना. तो मैं क्या करती थी कि जो बुक्स ऐसी हैं जिनमें, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम को छोड़ दो, जैसे शंकर है, शंकर IAS फॉर एनवायरनमेंट, एवरीबडी रीड्स इट. तो मैंने उसके ना क्या किया था, अलग से नोट्स बनाने की जगह उसके पीछे जो पेजेस में स्पेस होती थी ना, आई जस्ट यूज टू राइट डाउन ऑन द बुक, मतलब चैप्टर के पीछे ही. तो मैं पॉइंट वाइज नोट्स बनाती हूँ यूजुअली, मेरे से सेंटेंसेस नहीं ज़्यादा वो करती. कीवर्ड बेसिकली नोट्स बनाने का पर्पज़ ये है कि यू आर नॉट डुप्लीकेटिंग योर मटेरियल. आप पहले ना किसी भी चीज़, किसी भी किताब के नोट्स बनाने जा रहे हो, गिव इट मल्टीपल अमाउंट ऑफ रीडिंग. 3-4 बार उसको रीड करो, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक नोट्स. पहली रीडिंग के बाद से ही नोट्स बनाने लग जाओगे ना तो वापस किताब बन जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका. तो पहले 2-3-4 बार तो आराम से उसको रीडिंग करो एंड देन मेक योर नोट्स. एंड योर नोट शुड बी कीवर्ड्स मैक्सिमम, कि वो कीवर्ड देके ना आपको अचानक से एक स्टोरी लाइन प्ले हो जानी चाहिए आपके दिमाग में कि दिस इज़ द कीवर्ड. जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अभी चेंज हुआ है, तो जो कंपैरिजन है ना वो आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, उसमें 4 शेड्यूल थे, इसमें इतने हो गए. तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं कि इस शेड्यूल में ये लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं है. वो मेमोरी में आपका एच हो जाएगा जब आपने 3-4 बार पढ़ लिया होगा. तो नोट मेकिंग मेरा प्रोसेस ये रहता था. इकोनॉमी के नोट्स मैंने ज़रूर कॉपी में बनाए थे किताब से पढ़ के, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. दे आस्क वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस कि अगर रुपी गिर गया है तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर डॉलर बढ़ गया है तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना, दे नीड अ वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी. तो मैंने इकोनॉमी के नोट्स मतलब जम के बनाए थे कॉपी में. इसके अलावा मैंने हर जगह जहाँ जहाँ कामचोरी हो सकती थी वहाँ की थी मैंने बुक में साइड में से स्क्रिबल करके. तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है. डोंट कॉपी माई आइडिया. अगर आप उस टाइप के हो कि आप बुक को हाईलाइट कर लोगे
and then you are focused enough to just revise what is highlighted. That works for you. You are saving your energy. Smart work है वो आपके लिए. You will be able to reproduce more later. तो ये सबके हिसाब से अपना अपना होता है. मेरा नहीं था उतना. मेरा था मैं वापस किताब पढ़ने लग जाती थी. तो जहाँ जहाँ मौका मिला है मेरे को वहाँ वहाँ मैंने नोट्स बनाया है काम चोरी करके और नहीं भी. तो दैट्स माय आंसर टू यू. एनीबडी एल्स? एक सेकेंड जस्ट. यहाँ पर भी एक किसी का डाउट था. हाँ. हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में प्रिपरेशन किस लैंग्वेज में करें. मतलब अंदर से फील आ रहा है कि हिंदी में बेस्ट कर सकते हैं, बट एक साइड ये है कि इंग्लिश में भी कर सकते हैं. तो दैट्स आई वाज कंफ्यूज्ड कि कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी. NCERTs पढ़ के ट्राई करो, हिंदी की भी इंग्लिश की भी. जिसमें ज़्यादा आसानी आ रही हो ना वो चूज़ कर लेना. देखो आज मेरे ख्याल से इस साल भी काफ़ी सारे टॉपर्स आए हैं जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं. तो हिंदी लैंग्वेज से निकालना ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है. पीपल आर डूइंग इट. बट अगर आपका ऐसा है कि आप दोनों इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, तो पहले थोड़ा सा इफ़ यू हैव टाइम तो थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से सब्जेक्ट में हो. तो जैसे आई रिकमेंडेड हिम कि न्यूज़पेपर एंड NCERTs रीड देम इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एंड सी कि आप किस में जल्दी कर पा रहे हो. उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू फाइन ट्यून योर आगे की स्ट्रैटेजी. मैम क्वेश्चन है कि NCERT कैसे पढ़ें, मतलब हिंदी में बेस्ट है या इंग्लिश में. हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में? हाँ, NCERT. मैं कह रही हूँ आप दोनों ट्रायल करके देखो. कोई भी आप 2 सब्जेक्ट उठा लो. मान लो एक आप उठा लो, एक क्लास की ज्योग्राफी उठा लो किताब. सेम क्लास की भी हो सकती है, अलग अलग क्लास की भी हो सकती है. उन किताबों को पढ़ो और उन किताबों को पढ़ के ये देखो कि आपको ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा समझ में आया, किससे समझ में आया. इंग्लिश से बेटर अंडरस्टैंडिंग आई उस सब्जेक्ट की है हिंदी से. फिर उसके हिसाब से डिसीजन लो. मैम आई एम आस्किंग दैट NCERT को अप्रोच कैसे करें. मीन्स हाइलाइट्स करके या फिर पूरा पढ़ना है. कैसे कंटेंट को उससे निकालना पड़ेगा. वो प्रीवियस ईयर देख के या फिर कंटेंट तो आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर देख के ही निकलेगा. अदरवाइज आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा. ठीक है. जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है तो NCERT स्कूल्स में एक इम्पॉर्टेंट बुक तो है ही हिस्ट्री की. बट वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत पुअर आउटपुट है. UPSC हार्डली आस्क एनीथिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री. एक दो क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं, प्रीलिम्स में तो इतना पूछते भी नहीं है. तो वर्ल्ड हिस्ट्री अब अगर आपने सिलेबस नहीं देखा होगा और आप सीधा NCERT उठा के पढ़ने लग जाओगे. वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक इतनी, आई हैव नॉट रेड दैट बुक 6 attempts, आई हैव नॉट रेड दैट बुक, क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट इज़ वेरी पुअर. तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप वो कर पाओगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी लिमिट तक पढ़नी है. ये डिसीजन जो है सिलेबस एंड PYQ एकदम साथ में होने चाहिए. मीन्स मैम कोई भी बुक पढ़ने से पहले या प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस और PYQ एनालाइज सब्जेक्ट वाइज PYQ इज वाइडली अवेलेबल इन द इंटरनेट. कहीं ऑन द इंटरनेट कहीं से भी उठा लो. सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उनको एनालाइज करो. मैं अपनी एनालिसिस बता देती हूँ मैंने कैसे की थी. प्रीलिम्स के और मेंस के सब्जेक्ट वाइज मैंने पेपर्स निकाल लिए थे एंड आई मेड अ लिस्ट. लिमिटेड सिलेबस में लिमिटेड कीवर्ड दिए हुए हैं कि फेडरलिज्म ऐसे करके कीवर्ड्स दिए हुए हैं. आई मेड अ लिस्ट ऑफ दोज कीवर्ड्स और मैंने आगे टैली मार्किंग की थी कि ठीक है अब लास्ट 10 years के मैंने निकाले थे कि इससे इतने क्वेश्चन पूछे, इससे इतने. तो एट द एंड ऑफ द एनालिसिस 10 साल के पेपर्स की यू विल सी देयर इज अ पैटर्न कि एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे होंगे. तो उस हिसाब से एनर्जी दो. थैंक यू. वहाँ पे हाँ नहीं. Congratulations, ma'am. As you said, this was your 6th attempt, and for the previous 5 attempts, you were not able to clear prelims. So, what do you think were the mistakes you made in those 5 attempts in the prelims? What was your prelims focused approach, and what different you did this time? Okay, so strategy wise, to be honest, first 3 years थोड़ा strategy lacking था. I did a very few number of mocks and everything. So there I knew I lagged. Last 3 attempts, मतलब पढ़ाई वाइज और मेहनत वाइज कोई कमी नहीं थी. कमी किस चीज़ की थी? कॉन्फिडेंस की. मैं पेपर ना टेंशन में जा रही थी देने हर बार.
एवरी टाइम आई यूज़ टू पैनिक. मेरा जो यूजुअली मैं मॉक्स में जो मैंने एनालाइज किया था, मेरा ये रहा कि मेरा जो एफिशिएंट स्कोर है, जो मतलब मेरा जो रेशियो है, दैट इज़ पुअर. मतलब मैं अगर 80 क्वेश्चन करूँगी तो ऐसे एक्यूरेसी रेशियो मेरा बहुत अच्छा नहीं था कि मेरे 80 में से 78 सही हो रहे हैं, थोड़ा कम था. सो माई स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम वॉज कि क्योंकि मेरा एक्यूरेसी रेशियो इस कम है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगी ताकि मार्क्स इन्फ्लेट हो जाए. तो माई स्ट्रैटेजी थर्ड अटैम्प्ट ऑनवर्ड्स वॉज नो, मैं 90 से कम क्वेश्चन नहीं करने वाली, 90 से ज़्यादा करूँगी. तो सिक्स अटैम्प्ट ऑल्सो जिसमें मेरा क्लियर होता है, आई अटेम्प्टेड समवेयर अराउंड 94-95 क्वेश्चन, जबकि उस टाइम भी बच्चे कह रहे थे पेपर डिफिकल्ट था. बट दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट आई गेन्ड आफ्टर गिविंग मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स कि भाई 80 में से मेरे अगर 70 हो रहे हैं तब भी मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाली, तो बेटर आंसर 94-95 क्वेश्चन ताकि मेरे इन्फ्लेट हो जाए मार्क्स. कॉमन मैथ्स स्टैटिस्टिक्स वाले यूज़ कर लेना है स्टैटिस्टिक्स. तो लास्ट 3 अटैम्प्ट्स में स्ट्रैटेजी वॉज नॉट लैकिंग, इट वॉज कॉन्फिडेंस. तो 2 अटैम्प्ट में तो मैं मतलब पैनिक अटैक के सिचुएशन में ही गई थी पेपर देने की, भाई पेपर नहीं निकला तो क्या करूँगी इस उसमें. लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स देने गई थी तो गेट के बाहर खड़े होकर मैंने सोचा था बाहर में क्या एग्ज़ाम, जो होगा देखा जाएगा. 2 घंटे पेपर OMR भर के बाहर आ जाऊँगी मैं. बगल में बीच में 2 घंटे का जो गैप मिलता है मेरे दिमाग में चल रहा था पेपर करके बाहर मैकडॉनल्ड्स खाऊंगी बैठ के. तो ये लास्ट अटैम्प्ट मेरा जो क्रेडिट जाता है निकलने का, वो मेरे थोड़ा रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री जाके एग्ज़ाम देने को है. तो इस एग्ज़ाम में आप जितना पैनिक और क्लोज माइंडेड जाओगे ना, नहीं निकलेगा. खूब ओपन माइंडेड जाओ, कॉमन सेंस के साथ जाओ तो निकलेगा. मतलब ये आप डर डर के जाओगे ना कि ये एग्ज़ाम यार मतलब हुआ नहीं बनाना है यार, हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सोच के जाना एग्ज़ाम देने. तो यही था डिफरेंस. मेहनत वाइज मेरा लास्ट 3 अटैम्प्ट्स वॉज द सेम, नो स्ट्रैटेजी, कोई चेंज नहीं था. 6th अटैम्प्ट में तो मैं इतना वो बोर हो गई थी इस एग्ज़ाम से, मेरे को लग रहा था मैं मॉक भी नहीं दूंगी, तो मैं बिना मॉक के गई थी 6th अटैम्प्ट में. बट आई क्लियर्ड बिकॉज आई वेंट विद अ वेरी ओपन माइंड. खूब नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए थे मैंने वही जो बताया क्या थी अप्रोच, देखा जाएगा, ये सोच के गई थी. एंड मैम हम एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हमने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए बहुत ज़्यादा, तो वो मोस्टली मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में जा रहे होते हैं. एंड प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स फोकस्ड अप्रोच कैसी रहनी चाहिए? एक्यूरेसी का ना देखो तरीका एक ही है, रिविज़न. बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. अगर उन पे सी दिस एग्ज़ाम स्पेशली आई थिंक ऑल दिस 3 स्टेजेस इट्स अ रिलेटिव एग्ज़ाम. तो आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एग्ज़ाम दे रहे हो. अगर उस ग्रुप ऑफ पीपल ने मान लो सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है एंड यू हैव नॉट रेड दैट बुक, और बच्चे वो क्वेश्चन सही कर रहे हैं और आप गलत करके आ रहे हो, देन यू आर एट लॉस. बट अगर आपने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, आपने सही किया, आप उसी ग्रुप में हो. करंट अफेयर्स का कुछ बहुत ही अलग क्वेश्चन आ गया तो वो कोई नहीं कर पाएगा, कट ऑफ विल गो डाउन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ रिलेटिव एग्जाम. तो जो बेसिक तैयारी है ना, वो आप जो सब कर रहे हैं वो उतना तो आपको करना ही है, उसके अलावा आप और बिल्ड कर सकते हो. तो एक्यूरेसी का पहला फंडा तो है रिविजन, बेसिक जो मटेरियल है उसका. दूसरा मॉक्स, बहुत मतलब अगर आप अर्ली स्टेज पे हो अपने प्रिपरेशन के तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक्स दे सकते हो. अदरवाइज फुल आप कोशिश करो फुल लेंथ टेस्ट में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की. उसके अलावा एक जो चीज़ आपको सबको करनी चाहिए, हुएवर इज़ एस्पायरिंग टू राइट दिस एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट जब से पैटर्न चेंज हुआ, आई थिंक 2013 या 14 से पैटर्न चेंज हुआ था, तब से पेपर उठाओ और पेपर को एग्ज़ाम की तरह अटेम्प्ट करो. और अटेम्प्ट इट इन 3, मतलब आपको उसको ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा उस अटेम्प्ट को. पहला, आप सिर्फ वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको पता है कि दीज आई नो फॉर श्योर, ये 100% मेरे को आते हैं, मतलब उसको ब्लैक पेन से मार्क कर लो. फिर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है 50-50 आते हैं, मतलब 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको आप किसी और पेन से मार्क कर लो. फिर तीसरा होगा जिसमें आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 बच गए हैं, उनको भी अटेम्प्ट करो. फिर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल ही हवा नहीं, उनको भी अटेम्प्ट करो कि आपको अगर तुक्का मारना होगा तो वॉट योर हंच सेज. उसके बाद मेक अ चार्ट, उसमें आप देखो कि आपके जो आपको कम्प्लीटली पता थे उसमें से भी गलत होंगे, टेक इट फ्रॉम मी,
हमें लगता है कि ये सही है कॉन्फिडेंटली, बट उसमें से भी गलत होंगे। तो उसमें देखो कि ठीक है, मान लो यू हैव रफली अबाउट 30 क्वेश्चन जो आपको 100% आते थे। इससे ज़्यादा इस वाले प्री में तो बच्चों को 30 क्वेश्चन भी नहीं आते थे विद कॉन्फिडेंस। तो वो 30 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। 30 क्वेश्चन का आपका अटैम्प्ट वहाँ हो गया। सपोज यू हैव 20 मोर क्वेश्चन जिसमें आपने 50-50 कर लिया है, वहाँ आप देखो क्या आपका ओवरऑल गेन हो रहा है। इवन इफ आपके 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी गलत हैं और 10 क्वेश्चन सही भी हैं, तब भी वो नेट आउटपुट पॉजिटिव ही होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? +2 and 2/3, तो वो पॉजिटिव ही होने वाला है। ऐसे ही उसके बाद थर्ड आपका जो कॉलम बन रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि 3 ऑप्शंस हैं और 1 ऑप्शन नहीं है, उसमें भी आप वो कर सकते हो कि मेक अ कॉलम, और उसमें देखो कि क्या आउटपुट आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे ओवरऑल 4 कॉलम्स बना के आप एनालाइज करो। उसमें आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहाँ कहाँ नेट पॉजिटिव आ रहा है, और उसके हिसाब से यू कैन हैव योर ओन स्ट्रैटेजी कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे लिए आर इनफ, इतने मैं करूँगी। तो मेरे लिए वो रेंज 90 to 95 है। आपके लिए हो सकता है 80। माई ब्रदर यूज टू अटेम्प्ट ओनली 80-85 क्वेश्चन, उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी। एंड मैम, इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखने के बाद देर वर हार्डली एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, एंड इवन फ्रॉम लक्ष्मीकांत देर वर नो डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो आफ्टर सीइंग द एनालिसिस ऑफ दिस प्रीलिम्स, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे वर सेइंग दैट अब लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू रीड द बेयर एक्ट, एंड दिस ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग, द बुक लिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग एज द ट्रेंड ऑफ द पेपर चेंजेस. सो हाउ टू कीप अप विद दैट? बेयर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू आर पॉलिटी के क्वेश्चन करने हैं, लॉ के नहीं करने सॉल्व, है ना। तो बेयर एक्ट की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि फंडामेंटल एनसीईआरटीज़ हैं, विदाउट अ डाउट एनसीईआरटीज़ देखनी है। नाउ देयर आर नई एनसीईआरटीज़ आ गई, तो आप लोग नई वाली ही पढ़ना। बी अप टू डेट विद वॉट एवर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, रीड द न्यू एनसीईआरटीज़। और रही बात लक्ष्मीकांत की, ऐसी बात नहीं है, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आए हैं, तो वो बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सी यू हैव टू सेव योर एनर्जी। बेयर एक्ट पढ़ने लग जाओगे तो 1 साल लग जाएगा। पीछे लवलीन, शी सिटिंग राइट हियर, शी इज़ अ लॉयर, वो बेचारी 3 साल लगा के लॉ बेयर एक्ट पढ़ के आई है। हम 1 साल के अटेम्प्ट में सिर्फ लॉ बेयर एक्ट थोड़ी पढ़ते रह जाएंगे। तो वो जो बेसिक बुक्स है दे आर नेसेसरी, बट एनसीईआरटीज़ हैव गेन्ड इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. Thank you so much. No problem. Anybody else? Before moving to next question, we would like to acknowledge the presence of Ms. Ma'am's parents, Mr. Amitabh Agnihotri, who is in Indian Foreign Services. And he is currently posted in Jabalpur, and Mrs. Namita Agnihotri. Okay, someone else was asking. इधर से, हाँ पहले विल आस्क, हाँ इधर दे देना माइक। ये इसको यहाँ से तो सुनाई दे रहा है। आई विल आंसर। थैंक यू। तो ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए there are few things that you need to keep in mind. First of all, I'll tell you why I did not take statistics. So थोड़ा सा practical approach is important for this exam. Statistics का material market में for UPSC for statistical service easily available, but for UPSC per se was not very readily available. So that was one of the main reasons why I dropped statistics as an optional. Why I chose political science? पहला तो था कि there's a great amount of overlap in political science and the GS syllabus that we have. So that was one reason that I chose political science. See, PSIR आपको GS 2 में help करेगा, जिसमें polity वगैरह है,
तो वो थोड़ा बहुत आपकी ना मेहनत बचती है. आपको इनवेरिएबली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए आपको इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर करना ही पड़ता है. दैट्स वन थिंग. GS 4 में भी, एथिक्स में भी जो फिलोसफर्स और स्कॉलर्स वगैरह मेंशन्ड हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो. यू रीड प्लेटो, एरिस्टोटल, इमैनुअल कांत, all these people जिनकी philosophies आपको ethics के syllabus में mentioned है, you read them also. So you say, just to give you an example, मेरे prelims और mains के बीच के time जो मेरे पास time था, 60% of time was devoted to PSIR. तो मेरी PSIR की वजह से ethics I think I must have read for hardly 3 days. I could cover it because of political science. तो optional choose करते समय make a few practical decisions and of course interest is very important. Interest होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे को political science में interest आ रहा था. syllabus मैंने जब देखा था तो पढ़ के मेरे को लग रहा था हाँ this looks interesting. तो थोड़ा सा आजकल बच्चे एक और जो आपका मोटिवेशन हो सकता है ऑप्शनल चूज़ करने के लिए, दैट कैन बी हाउ वेल इट इज़ डूइंग इन द एग्जाम. जैसे आजकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ डूइंग वेरी वेल, बट यू हैव टू सी कैन यू. मेरे से नहीं हो सकता था कि मैं ड्राइंग बनाऊँ बैठ के, आई कुड नॉट. तो अगर वो थोड़ा इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है. फर्स्ट पर्सनल इंटरेस्ट, उसके बाद ट्रेंड. जैसे मैंने जो सब्जेक्ट्स ढूंढे थे वो थे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये 3 सब्जेक्ट्स में मेरे को लग रहे थे कि इसमें से कोई एक ले सकती हूँ मैं. बट देन आई जीरो डाउन टू पॉलिटिकल साइंस. थोड़ा सिलेबस कंपेयर किया तीनों का, ओवरलैप देखा मैंने इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस हर सब्जेक्ट की इग्नू का फर्स्ट जो मास्टर्स का मटेरियल होता है वो मैंने डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ा भी है. यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं कि कंपैरिजन वीडियोस की कौन से सब्जेक्ट में क्या है. कहीं किसी की फ्री क्लास थी तो मैंने वो भी देखी हैं कि पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी, तीनों की. तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ऑप्शनल के लिए टू डिसाइड. बट इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. वो आपको ना बर्डन लगने लगेगा. मेंस में रैंक, मेंस मतलब आपकी रैंक जो है मेंस में वो ऑप्शनल की वजह से खींचती है, बहुत खींचती है. Anyone else? Yeah. Good afternoon, ma'am, and hello, everyone. First of all, congratulations to you. Thank you. The position which you are at now is still a dream for many, so kudos to you. Thank you. My question was, apart from studies, what are the extracurricular activities you did or any kind of internships you were into which has facilitated you to crack these exams? Were there any? मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टीचर्स और मेरे पेरेंट्स बैठे हुए वो बता देंगे कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर कर रही थी मैं. बट सो इन कॉलेज, इन बैचलर्स, आई मेड श्योर कि एक समर इंटर्नशिप तो हो ही जाए. तो मैंने हर 3 साल इंटर्नशिप की है, 3 साल. और विंटर्स में भी हो सकता है कि होगी, बट समर्स तो डेफिनेटली की है मैंने. लाइक आई सेड, दीज 3 years आर फॉर यू टू बिल्ड योर CV. आगे काम आएगा ही आएगा, तो यूज़ इट टू योर एडवांटेज. और व्हाट वाज योर अदर क्वेश्चन? एक्स्ट्रा करिकुलर. कॉलेज में तो एक्स्ट्रा करिकुलर की शुरुआत ही हमारे बैच ने की थी. वी स्टार्टेड द डिबेटिंग सोसाइटी, स्टैटिस्टिकल सोसाइटी एंड एवरीथिंग. तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो कर लो. इट विल हेल्प यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ अगर पढ़ाई करते रहोगे तो एक्स्ट्रा करिकुलर ज़रूरी है. And were the internships were from a particular field or it was random? नहीं, मेरे लिए I have worked in, I had interned in Center for Science and Environment, then Ministry of Health, and then where else? I think zoo. 3 internships and AIMS, 4 internships I had done. So all profiles were different. You have to be on a lookout. मतलब आपको समर, आपका वेकेशन शुरू होने से पहले आपको अप्लाई करना शुरू कर देना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट टेक यू. इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. तो इन CSE में इट वाज एनवायरनमेंट रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में इट वाज हेल्थ रिलेटेड, जू में इट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आइडिया. हम अपना ही सर्वे करके अपना ही एनालाइज कर रहे थे. और इन एम्स अगेन हेल्थ रिलेटेड. तो सारा डिफरेंट था. तो ये दीज 3 years for you to experience different fields and different things. Only then you can decide what you want to do in future. So do as many internships, extra curricular जितना कर सकते हो कर लो. पढ़ लेना, हर सेमेस्टर में नंबर ले आना. Okay. पीछे
First of all, congratulations, ma'am. Thank you. Ma'am, I want to ask about how to write a good answer. मतलब एक अच्छे आंसर के क्राइटेरियाज क्या होते हैं? जैसे लेंथ कितनी होनी चाहिए या फिर वो मतलब होना कैसा चाहिए एक अच्छा आंसर? आंसर राइटिंग के लिए मेरी अप्रोच क्या रहती थी, मैं पैसेजेस में लिखने वाली नहीं हूँ. आई यूज़ टू राइट इन पॉइंट्स. तो द नंबर वन रूल of answering any question in UPSC is to answer the demand of the question. Don't stray away from the demand of the question. तो अगर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन. जैसे आई वॉज डिस्कसिंग लास्ट वीक विद अ फ्यू एस्पिरेंट्स, there was a question in mains about what factors influence ocean currents and how ocean currents influence fishing industry in the world. So this was a question. 15 marker question था मेरे ख्याल से ये. So now it is asking you two questions in one question. So it is imperative that you answer both the questions. So my answer to this question was a basic introduction about ocean currents, that what ocean currents are. And then I had a very straightforward approach. Simply, after introduction, I used to write, okay, these are following are the factors that influence ocean currents. And in points, 5-6 points. And then straight away jump to the next demand of the question, that how it affects the fishing industry. Again, underline it and points. And then write a conclusion. So that is the basic framework that you can have. You can see other toppers' answer copy as well. My answer copies are there on the internet. Forum IS has put it. For word limit, don't write less than the word limit. It doesn't look good. पेपर ना मतलब मैं तो ऐसे ही देने गई थी. मैं इनफैक्ट आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई पेरेंट्स कि मैं तो इसी अप्रोच के साथ देने जाऊँगी जैसे मैं अपना सेमेस्टर एग्जाम देने जा रही हूँ. तो गो विद दैट अप्रोच कि मैं सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ. और वर्ड लिमिट जितनी दी है, इफ़ यू कैन राइट इट विद इन द वर्ड, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है वर्ड लिमिट में लिखना. अगर वर्ड लिमिट में लिख सकते हो परफेक्ट. वर्ड लिमिट से आप 20-30 मैक्सिमम 50 वर्ड्स ऊपर जा सकते हो. उससे ऊपर जाओगे तो एग्जामिनर विल गेट टायर्ड कि ये तो हर बार एक्सीड कर रहा है लिमिट. तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, वो आ जाएगा. इट्स मैकेनिकल है, वो हो जाता है. थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मैम. थैंक यू. सो सबसे पहले जब गवर्नमेंट को हाँ तो गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्रिटिक करना हमको कितना सही रहना चाहिए? अगर क्रिटिक कर भी रहे हैं तो क्या रेशियो होना चाहिए उसका? वैसे यूपीएससी की तैयारी करोगे तो जितना करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ोगे, यू विल ओनली रीड द गुड थिंग्स अबाउट government. So I don't think there will come a time when you will have a chance to criticize the government. And ideally you should not also, because you are writing this exam to get into the framework of government. So a little bit of criticism is okay किसी चीज़ का. They generally, UPSC does not ask, किसी policy का criticism नहीं पूछता. Usually it asks you to analyze an event. अगर वो करना करने के लिए बोले, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है तो उसमें आप खूब क्रिटिसाइज़ कर सकते हो. दैट्स एन इवेंट जो ऐसा है. इसके अलावा कोई और इवेंट ऐसा हो सकता है, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल. जैसे मान लो कि अगर गवर्नमेंट को कोई फॉरेस्ट को थोड़ा सा क्लियर करके कुछ डेवलपमेंट करना है, तो नाउ दैट कैन बी दैट वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, उसके डिमांड के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा. इफ़ इट इज़ आस्किंग यू टू क्रिटिकली एनालाइज, यू हैव टू गिव बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. देन यू कांट जस्ट राइट एडवांटेजेस एंड कम बैक. क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से लिखना है. अगर क्वेश्चन की डिमांड में ऐसा नहीं है क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू से, मतलब आपको दिखाना है कि कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है डेवलपमेंट की वजह से, इवन इफ एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सो राइट इन दैट डायरेक्शन. मतलब इमोशनल होकर पेपर मत लिखो, पेपर थोड़ा स्ट्रेटेजिक होकर लिखो. एनीवन एल्स? हाँ, थैंक यू.
तो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ना 2-3 ही ऐसे सीक्रेट्स तो क्या ही पर राज है पहला तो है हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल हु आर जो तुम्हें ना मतलब चने की झाड़ पे चढ़ा के रखे कि ये तो भाई बहुत बेस्ट बंदे हो तुम, ठीक है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तो मेरी लाइफ में से कुछ थे लोग जैसे माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, माय अ फ्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स जो कि ना मुझे ऐसे एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा के लगते थे, अरे तेरा नहीं होगा तो फिर किसका ही होगा। तो इसीलिए हैव अ गुड सेट ऑफ पीयर हु आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू इवन व्हेन यू आर डाउन। सो दैट्स वन थिंग। अदर देन दिस मेरे लिए एक और चीज़ जो कामिंग थी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर जिसकी वजह से मैं इतना टाइम ये अटैम्प्ट्स इतना खींच पाई, वो था पैरेलल करियर। जैसे मैंने अभी सबको रेकमेंड किया है कि एक पैरेलली लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, स्पेशली आफ्टर दिस प्रीलिम्स। दिस एग्ज़ाम मतलब वो यूपीएससी ने भी इनडायरेक्टली बोल दिया है, दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नॉट योर लाइफ, डोंट मेक इट योर लाइफ, पैरेलली कुछ कुछ करते रहो। तो दैट्स दोज आर दी ओनली फैक्टर्स दैट rest of you can send it to the president of NEEV. I'll try to answer everybody questions. Last question ले लेते हैं. Yes, ma'am. Ma'am, many congratulations to you. This is Amit. I hope you remember my name. Yes. Yeah. Before just forwarding to my question, just want to express this feeling. When we were in college and we were studying, so we had this thing in our mind, कि why don't we have any UPSC CSC topper from our college? So now finally we are seeing you, और यही चीज़ है जो हम सबको मोटिवेट करती है लाइक आगे बढ़ने के लिए। और फाइनली स्पेशली फॉर मी बिकॉज मेरे लिए ये माइंड में कब से थॉट था लाइक एक UPSC CSC टॉपर हमारे कॉलेज से भी हो, और जितना जल्द हो उतना जल्दी बेटर है। और हम लोग इसी चीज़ पर वर्क करते रहते थे, और मैम और कॉलेज भी हमसे यही कहता रहता था लाइक कितनी जल्दी हमें रिजल्ट मिले। सो वी वर एश्योरिंग कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में तो रिजल्ट आ ही आएगा, लाइक जब से ये सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी। और कॉलेज से जाने से पहले लाइक हमें आपको विटनेस करने का मौका मिल गया। तो फाइनली दिस इज़ द मोस्ट मोटिवेटिंग थिंग दैट वी हैव। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, आपने कौन सी प्रीलिम्स की और कौन सी मेंस की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी and why? तो I did not join any test series for prelims. मैं मार्केट से उठा लेती थी टेस्ट पेपर डिफरेंट उसके। डोंट स्टिक टू वन कोचिंग के टेस्ट पेपर्स बिकॉज ऑल कोचिंग्स हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ पैटर्न जिसके हिसाब से चलता है। यूपीएससी का पैटर्न कुछ अलग ही है, तो इसीलिए अगर आप एक कोचिंग के पैटर्न के हिसाब से ही करते रहोगे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट, बट यूपीएससी कुछ और ही पूछ लेगा तो लगेगा मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसीलिए ना मिक्स योर वो बैग ना, इट शुड बी अ मिक्स लॉट। अलग अलग कोचिंग के पेपर्स उठा लो, यू कैन टेक विजन, फोरम, इनसाइट्स, ये 3 तो मैं देख ही लेती थी। इनके टेस्ट पेपर्स उठा लो एंड मिक्स करके करो, बट मॉक से भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर आपको एनालाइज करने के बाद भी यू नीड टू राइट इट एज एग्ज़ाम्स, वो कि आप 2 घंटे वहाँ बैठ के OMR भी ले लो, साथ में OMR भी पढ़ लो, पर वो उसको एग्ज़ाम की तरह देना है। तो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। मेंस के लिए आई जॉइंड फोरम IAS। सो फॉर मेंस आई जॉइंड GS के लिए फोरम IAS ज्वाइन की थी मैंने, एंड आई फॉर essay आई जॉइंड नेक्स्ट IAS, एंड फॉर ऑप्शनल आई जॉइंड शुभ्रा रंजन। कुड नॉट कंप्लीट एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज़, एक भी टेस्ट सीरीज़ मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, सबके 2-2, 3-3, 4-4 पेपर लिखे हैं मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लिखे। तो I'll tell you the reason. Most of the coachings are hiring people who are from the aspirant community only. So their analysis is not as useful as you can have probably amongst peer. For instance, one of the analysis of my GS copies was 10 पॉइंटर का एनालिसिस आया था, उसमें से 7 पॉइंटर ये थे, यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अलग अलग सेंटेंस फॉर्म में। 10 में से 7 पॉइंट कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो वो एनालिसिस तो मेरे को पहले से ही पता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो इससे अच्छा है कि पीयर के साथ व्हेन यू राइट इन अ ग्रुप एंड एनालाइज टुगेदर, दैट मेक्स डिफरेंस। तो कोचिंग आंसर राइटिंग वैसे पहले अगर शुरू करना है तो कर सकते हो प्रीलिम से, बट बीच में भी करोगे तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। सो मेंस और प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज़ का यही है बस।
हाँ. नहीं, मैंने कोचिंग का तो जैसे मैंने बताया, जीएस का तो मैंने मिडवे छोड़ दिया था. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ज्वाइन की थी, आई लेफ्ट मिडवे. मेरे को वो थोड़ा उतना कुछ खास पॉइंट लग नहीं रहा था उसका. बट पॉलिटिकल साइंस आई जॉइंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट इट सेल्फ. 2018 वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट. तब तक मैंने ज्वाइन कर लिया था पॉलिटिकल साइंस. तो उसके बाद मेरा प्री नहीं निकल रहा था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस भी साइड में रखा हुआ था कि जब निकलेगा तब देखेंगे. तो कोचिंग पहले कर लेते तो हो जाता. इज़ नॉट मतलब डेफिनेट वो उसका कोई आंसर नहीं है. मुझे नहीं लगता कि अगर कर लेती तो हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी तो मोर और लेस वैसी ही रहती. कोचिंग में एक एडवांटेज जो आपको मिलती है कि यू फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में एग्ज़ाम दे रहे हो. वो ऑलरेडी मेरे पास था. आई हैड अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आर नाउ आइदर इन द सर्विसेज और आर स्टिल प्रिपेयरिंग. तो मेरे पास आई हैड अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बैठ के, वो पीयर मेरे पास था ऑलरेडी. एंड वॉट एवर नॉलेज दैट आई नीडेड फ्रॉम कोचिंग दैट ऑल्सो आई हैड गेन्ड. तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि पहले भी होता तो हो सकता छठा अटेम्प्ट ही लगता निकलने में. Thank you so much, ma'am. Now, we would like to invite on stage the convener of NEEB, Dr. Aprajita ma'am, for delivering a vote of thanks. Okay, so before moving on to the vote of thanks, I would like to invite Dr. Savita, who has been Aprajita's teacher, to kindly come and felicitate Aprajita. Yeah, hi. Actually, Aprajita was my student. I was teaching in this college. And not only that, I'm proud. When she invited me for this felicitation, which, I told her that this is the biggest felicitation you can get, because the institution from where you have studied, if they honor you, this is the, biggest moment which you are going to have. So I'm so proud, so proud of this child. And this college also, as she said, that, it gave her wings. This was the college, and I think she was the first batch, yes, who had started experimenting with all kinds of societies, debating society, poetry. And she was a brilliant one, though a little non-serious kind, which we say. But then we could see the spark in Aprajita, right? And we always, of course, along with other students, Prasu was there, who is now a statistical officer. So her batch was FOEP batch. It was a different batch. The structure was academically different. But the way these guys were indulging with this institution and also in their lives, they were experimenting.
always thinking out of box is something what has made Aparajita what today she is. So we are we are very proud of Aparajita, and her attachment with this institution is great, and so is mine. Thank you so much. Principal sir is not there, right? Thank you, Savita ji. So we move on to the final concluding segment of this event. And it is both a moment of pride as well as joy to see one of our, students clearing this exam, which so many students every year all over India covet to be there. They start their preparations, slog. Some of them clear easily, some of them take some time. But one of our own clearing it and being there gives a very different feeling. Aparajita had joined, as many of you have already mentioned, the first FYUP batch, the first batch of statistics. Also, our college was established in 2010, but I think Aparajita and a few of her friends, Shanu, Tanvi, Vaibhav Fodar, Vaibhav Miglani, and Tanvi and Neha. So they were part of this group who went to 2012, 2013 Antardhwani. And that is when the university gave us this college the first recognition. उससे पहले हम बन तो गए थे college, but पहली बार university ने recognize किया, and we got prize there, and their team was there doing that. So it was really a proud moment then, and it is a very proud moment now as well. So thank you, Aparajita, for joining us this morning. And, we wish you all the best, all the success. And I'm sure you know that we now have a society for the aspiring civil servants from this college, which is called NEEV, which was founded in 2020. And so we hope that we will maintain this connection with you, and you will help, mentor some of our students in the coming years. But as of now, I think you will be moving on for your training, and you will be a little busy now. But we will keep in touch with you. And I also do hope that we have many more such felicitation sessions in the coming year, and we have our students, achieving this height. I would also take this moment to thank Aparajita's Nanaji, Mr. Ramesh Talwani, for joining us, and also in joining his granddaughter's achievement. I would also take this moment to thank her parents, Mr. Amitabh Agnihotri and Ms. Namita Agnihotri, for sharing this moment of pride with us and joining us for today's evening. Of course, this event would not have been complete without the support and guidance of our principal, Professor S.P. Agarwal. So a big thank you to sir for always, supporting and motivating us. I would also take this opportunity to thank Mr. J.N. Chaudhary, Secretary Staff Council, Professor K. Lata, Director of the IQAC, Dr. Alok Ranjan Pandey, Convener of NSS, the entire Department of Statistics, Dr. Ashish Shukla, Dr. Sachin Tomar, Dr. Brijesh, Dr. Abhishek, and Dr. Suman for of course, being a part of Aparajita's journey, and also for joining us today to felicitate her. My heartfelt gratitude to all the volunteers of NEEV and NSS for their tireless efforts in the last 2 weeks, 1 week or so, to put together all this event. Actually, Amit had come up with this idea that we should, definitely felicitate our alumna. And then when I took this idea to Principal Sir and Lata ma'am, so they were like, yes, yes, we were also thinking, and we should also do. On the way, of course, we got the support of NSS and the Department of Statistics. So we all came together to put this through, and the students have really worked hard to put this together. And also, it's a great motivating, moment, because one of us is doing this, so they feel motivated that, not only are we felicitating, but we are also looking up to,
you to achieve this. Big thank you to both the anchors, Atharv and Shriyanshi, for coordinating this event. And I also like to thank Mr. Manoj ji and Mr. Anil ji for the technical assistance and recording the event. Thank you all of you, and we request you to kindly join us for refreshment.